Hello students. In this video, I'm going to provide 10 more conceptual questions for GATE 2026 exam. So these are the questions. First, you see the question and you can take a screenshot and attempt these questions and then look at the solution that I'm going to provide. So this is the first question, this is the second question, and third, fourth, and this is the fifth question, sixth, seventh, eighth, this is the ninth, and this is the 10th question. So basically there are 4 questions from mathematical physics and 2 questions from quantum, two from classical and 2 from EMT. Okay, so let's start with first question. See, the question says there is a integral which involves Legendre polynomial. So question says this integral is equal to 20 hai. So we have to tell the value of n. Here summation on j is being done and summation is from j equal to 1 to n. So we have to tell the value of n in this integral. Okay. So let's see solution. तो देखिए इसमें लीजेंड्रे पोलिनोमियल दिया गया है, तो लीजेंड यहाँ पे समेशन का होल स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है। तो समेशन का होल स्क्वायर है, तो इसको जो करेक्ट मैथमेटिकल वे है ना लिखने का, जैसे हम इसको इंटीग्रल आई लिख देते हैं तो -1 to +1 है। और करेक्ट मैथमेटिकल वे ये होता है कि जैसे समेशन का ये स्क्वायर है ना, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे ऐसे एक समेशन लिखेंगे रूट अंडर जैसे ये j है और 2j+1, ओके, and here we have pj and x, and there will be another summation. So there, this is summation on j and there will be another summation. Let's say we are doing summation on I, so this will become root under 2i +1, and there is I also, j की जगह पे यहाँ पे एक I आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे pi and x इस तरह से लिखना होगा and dx, ठीक है। सो वी विल हैव टू राइट इट लाइक दिस बिकॉज देयर इज स्क्वायर ऑफ दिस समेशन, तो समेशन 2 बार लिखना होगा, ठीक है। सो वी कैन डू इंटीग्रेशन फर्स्ट। सी देयर इज समेशन एंड देयर इज इंटीग्रेशन, सो वी कैन डू इंटीग्रेशन फर्स्ट हियर। तो अगर हम इंटीग्रेशन पहले करते हैं ना, दिस इज लीजेंड्रे पोलिनोमियल, दिस इज लीजेंड्रे पोलिनोमियल, तो आप जानते हैं लीजेंड्रे पोलिनोमियल के इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है विच इज ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दिस विल बी समेशन ऑन जे, इस तरह से आ जाएगा, there will be summation on j and here you have root under j multiplied by 2j + 1, and then we have here root under summation on I भी आ जाएगा यहाँ पे, summation on I, and then we have some I and here 2i + 1, and this will become when you do this integration it will become 2 divided by, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 j+1 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा ij ऐसे लिखना होगा। दिस इज व्हाट इट इज, दिस पी आई और पीजे का इंटीग्रेशन करोगे -1 to +1, तो इट विल बी इक्वल टू दिस मच, एंड दिस इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, 20 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज क्रोनिका डेल्टा, सो व्हेन यू डू समेशन ऑन j, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 व्हेन j becomes equal to I, so in place of j we can write I everywhere, okay, so in place of j you can write I, so finally we will get here समेशन ऑन जे करने के बाद ऐसा होगा, वंस यू डू समेशन ऑन जे, ओके, जे पे समेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, ओनली वन, ऑल टर्म्स विल बिकम 0, ओनली वन टर्म विल सर्वाइव, दैट टर्म विल सर्वाइव विच इन विच जे बिकम्स इक्वल टू आई। तो जे जब आई के इक्वल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हमारे पास ऐसा होगा जे और मल्टीप्लाई, सॉरी जे को हम आई के इक्वल बोल रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन जे बिकम्स इक्वल टू आई इट विल बिकम 1. All right, so here we will get I and 2i + 1, and here also you will get I and 2i + 1, okay, and here we have 2, and here also j becomes equal to I, so we will write 2i + 1, okay, and that is equal to 20. That's what we will get. And here summation on I will be left, okay, because we have done summation on j, so summation on I will be left, okay, ये summation on I बच जाएगा, ठीक है। So now you see this 2i + 1 factor will cancel out and I मिलकर के 1 हो जाएगा, so what you are left with here is there is summation on I, okay, and here I जैसे यहाँ पे लिखा होता है ना, j is running from 1 to n, तो I will also run from 1 to n, so I is equal to 1 to n हो जाएगा यहाँ पे, और ये I और I रूट I मिलकर के यहाँ पे I आ जाएगा, that is equal to यहाँ पे
20 आ रहा है. तो when you do summation 1 plus 2 plus 3 up to n, okay, you are going to get here n multiplied by n plus 1 or divided by 2. Okay, and there was a factor of 2 here also. ये जो factor of 2 बच रहा था यहाँ पे, ये 2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है. So there will be a 2 factor of 2, so that is equal to 20. So these two will cancel out. Okay, so you get n into n plus 1 is equal to 20. So therefore this can be written like this, 4 multiplied by 5. So therefore यहाँ से compare करोगे तो n should be equal to actually 4. ठीक है, so that's the answer. इसमें n का वैल्यू 4 हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था what is the value of this n, तो आंसर is 4 here. So this was a basic question on Legendre polynomial. Okay, next question. See, the question says if y1 and y2, y1 का वैल्यू 1 plus x दिया हुआ है एंड y2 is e to power x be solution of differential equation, ये एक differential equation है, then p equal to, p का वैल्यू निकालना है. तो देखिए इस फॉर्म का जो differential equation होता है ना, उसके दो सॉल्यूशंस का रॉन्स्कियन आप निकाल सकते हो यूजिंग p. ठीक है, तो रॉन्स्कियन का एक फॉर्मूला होता है, देखिए हम लोग उसको यूज करेंगे. रॉन्स्कियन सॉल्यूशन, रॉन्स्कियन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन p dx, ऐसा होता है. ठीक है, अपर लिमिट इसका x होगा, लोअर लिमिट कुछ भी आप 0 या सम कांस्टेंट ले सकते हो. ठीक है, all right, so that's what we have. So this is the formula for Wronskian, but if you know, so this is the Wronskian of two solution. ठीक है ना, ये जो है ये this is Wronskian of two solutions. Okay, solutions of differential equation. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशंस का रॉन्स्कियन ये होता है. ओके, तो रॉन्स्कियन का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, ऐसा होता है y1 एंड y2, और यहाँ पे लिखना होगा y1 प्राइम्ड एंड y2 प्राइम्ड. दिस विल राइट, सो दैट इज इक्वल टू c एंड हियर e टू द पावर माइनस p dx इंटीग्रेशन, ऐसे लिखना होगा. सो लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ y हियर. ओके, so we'll put the values of y here. What we get, y is see, y1 is here 1 plus x, and y2 is e power x. And now do the differentiation. These are first derivative. So y1 का डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करने से 1 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो e पावर x ही रहेगा. ठीक है, so that's what we get. So that is c e to the power, यहाँ माइनस है, और इंटीग्रेशन p dx. So we have to calculate p here. Okay, so let's evaluate this Wronskian. So इधर आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, so we are getting here when you do multiplication e to power x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 plus x और फिर -1, that is equal to here c e to power माइनस इंटीग्रेशन p dx होगा. Okay, that's what you get. So 1 and 1 will cancel out. So you get here x e power x is equal to c e to the power minus integration p dx. This we get. Okay. So we have to calculate p, and p is the exponent of exponential. So to get p, let us take log. हम natural log दोनों side ले लेते हैं. ठीक है. So if you take log, you will get here हियर आ जाएगा ln x, log a इंटू बी आएगा ना, तो उसको log a प्लस log b में हम लोग लिख देंगे, तो ये बन जाएगा log x और प्लस x आ जाएगा. So if you take natural log both sides, so from here you are getting this, and from here you will get ln c और माइनस, इसमें log लेने पे माइनस p और dx इंटीग्रेशन ये मिलेगा. Now let us do differentiation both sides. दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देखिए यहाँ से 1 by x आ जाएगा, this term gives you 1 by x and this gives you 1. Okay, and that gives us here when you do differentiation of this integration, you will get minus p here. Okay, so therefore we can say that p is equal to, you take LCM here, और ये माइनस 1 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आप ऐसे कह सकते हैं p is equal to हो जाएगा -1 plus x और डिवाइडेड बाई x. तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, सो दैट्स द आंसर, p is equal to -1 plus x divided by x. So this D option is correct actually. Okay, so this was based on a property of differential equation that for this type of differential equation, Wronskian can be calculated using the value of p here. Okay, so we use this fact to get the value of p. Okay, next question. See, the question says if fs be Laplace transform of y and y satisfies this differential equation, and value of y at 0 x equal to 0 is 3 and derivative of y at x equal to 0 is 1.
तो हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो एफ है उसका s इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताना है. ओके, so to solve this question, what we will do is we will just take Laplace transform of this differential equation. So you do this, take Laplace transform of differential equation. So we'll take Laplace transform of this differential equation. So we will get here s square and fs minus s y at 0 and minus y primed at 0. So this is the formula for second derivative of a function का Laplace transform जब आप लेते हो, ठीक है ना, when you take Laplace transform of second derivative of function you get this. Okay, this is standard formula. Okay, and when you take Laplace transform of y, you will get here f of s, and that is equal to 6, and Laplace transform of this will be here s and divided by s square and plus 2 square. That's what we get. Okay, that's the Laplace transform. तो हमें यहाँ पे देखिए वैल्यूज दिया हुआ है, दिस इज एस स्क्वायर एंड हियर एफ ऑफ एस एंड माइनस वाई एट 0 इज गिवन टू बी 3, सो दिस बिकम्स माइनस 3 एस माइनस वाई प्राइम्ड एट 0 इज 1, सो दिस इज 1, और प्लस यहाँ पे एफ एस है, that is equal to 6s or divided by s square plus 4. That's what we get. Now we have to calculate fs at s equal to 1. See, we have to calculate this. So we'll put here, put s equal to 1. So if you put s equal to 1, it will become f1, and from here also you will get f1. So these two will add and you will get ultimately here 2f at 1. And here you will get minus 3 and minus 1. So that will become minus 4. Okay, so that is minus 4. So bring it to this side. So you will get here plus 4 and plus here 6 square. And here when you put s equal to, when you put s equal to 1, it becomes 6. And when you put s equal to 1 here, you get 5. Okay, so ultimately we are getting here 26 upon 5. Okay, you add these two, or that is equal to 2f at 1. So you divide by 2 both sides. So you are getting f at 1 is equal to 13 upon 5. So that's the answer. Correct answer is this one, 13 upon 5. All right. So this is the third question from mathematical physics. There is one more question. So this question let us discuss. It says polynomial solution of differential equation is differential equation का polynomial solution satisfies this condition. Y at 1 is equal to 2. Then value of integral, इस integral का value बताना है. Okay, you can recognize that this differential equation is actually Legendre differential equation with n is equal to, here हम लोग Legendre differential equation में n multiplied by n plus 1 लिखते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, here we write n multiplied by n plus 1. So we can say that in place of n we have put 2. तो यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 plus 2 multiplied by 2 plus 1, so that is 6 बन जाएगा ये. तो हम कह सकते हैं कि this is the Legendre differential equation with n equal to 2, so therefore its solution should be p2x. actually Legendre polynomial जो p2x होता है, ठीक है. लेकिन Legendre polynomial actually satisfy करते हैं इस तरह का कंडीशन. देखो जैसे कोई भी Legendre polynomial है ना, pn, अगर x की जगह 1 आप पुट करेंगे तो that becomes equal to 1. तो pnx is actually equal to 1 होता है, ठीक है. सो दिस इज 1. लेकिन इसमें y at 1 is equal to 2 दिया हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे y जो है ना, y इज एक्चुअली इक्वल टू pnx, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 है, 2pnx है, ठीक है. या मतलब इन जनरल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे n इक्वल टू 2 यूज किया है ना, तो ये 2p2, ठीक है ना, p2x ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है. सो y इज 2p2x है ये. ओके, so therefore now we have to evaluate this integral. देखिए y square और dx and minus 1 to plus 1. तो देखिए इसमें y की जगह ये पुट करोगे ना तो 4, और ये हो जाएगा p2 square x and dx. That's what we get. Okay, from minus 1 to plus 1. So now again using property of Legendre polynomial, we get here 4 multiplied by 2 divided by 2n plus 1. एक फॉर्मूला होता है, जैसे pn square dx इंटीग्रेशन करोगे ना तो 2 divided by 2n plus 1 होता है, ठीक है. So that's what we get, but here we will put n equal to 2. Okay, so when you put here n equal to 2, you will get here 8 by 5. Okay, this becomes 8 and this becomes 5. Okay, so correct answer will be 8 by 5. All right. So these are very basic differential questions on mathematical physics, but it requires some
basic knowledge of the related concepts. All right, so now let's move to another question. This is a question from classical mechanics. It says, an asteroid is moving in a parabolic path around a star whose mass is capital M. तो स्टार का मास जो है कैपिटल M दिया हुआ है, ठीक है. When the asteroid is at minimum distance r naught from the star, mass of star suddenly becomes 1.5 m. अच्छा, m नॉट यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, इसको m कर देते हैं, ठीक है ना. इट शुड बी m एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे m दिया हुआ है ना, so it should be 1.5 m. Okay. So mass of the star suddenly becomes 1.5 m, due to which asteroid begins to move in. अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है. इन ऐसे लिखा हुआ है सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 r नॉट, सर्कल ऑफ रेडियस r नॉट, and ellipse of semi major axis 1.5 r naught, and ellipse of semi major axis r naught. So that's the question. Okay, so let's do its solution. See, the question is something like this. There is a star, its mass is capital M, and an asteroid is moving like this. Suppose इससे इसका minimum distance ये है, ठीक है ना. This is the minimum distance. तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे move कर रहा है ये parabolic path में, ठीक है. It is moving in a parabolic path like this, ठीक है. तो ये distance इसका यहाँ से ऐसे increase करेगा ऐसे, ठीक है ना. ये ऐसे करके यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज, तो इट इज समथिंग लाइक दिस. इट इज गोइंग दिस वे एंड नीचे भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना. सो हियर वी कैन ड्रॉ द पाथ लाइक दिस. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस. ओके, ये मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे आर नॉट दिया हुआ है. ओके, नाउ यू सी कि अगर हम लोग यहाँ पे इसका कुछ स्पीड होगा v, अभी मास m है, ठीक है. इट इज मूविंग, वी विल एज्यूम इट टू बी ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम. यहाँ पे कोई एस्ट्रॉइड है, दिस इज द एस्ट्रॉइड, इसका मास हम लोग स्मॉल m एज्यूम कर रहे हैं. सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है. सो इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन पैराबोलिक पाथ, इसकी टोटल एनर्जी जो होती है ना, जीरो होती है. सो हियर टोटल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो. सो इफ यू राइट काइनेटिक एनर्जी हियर, इट विल बी हाफ m v², और पोटेंशियल एनर्जी अभी इसका लिखेंगे आप तो g कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बाई r नॉट हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू जीरो है. सो देयरफॉर स्पीड, यहाँ पे अगर मान लो इस पॉइंट पे स्पीड को हम v नॉट बोल देते हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड है v नॉट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल m विल कैंसिल आउट, सो 2g कैपिटल M एंड डिवाइडेड बाई r नॉट हो जाएगा. सो दैट इज द स्पीड. तो इसका स्पीड ये आ रहा है 2g कैपिटल M डिवाइड बाई r नॉट. ओके, so we have obtained the speed of the particle, speed of the asteroid at the nearest point. Okay, now question says, when it is at the nearest point, suddenly its mass becomes 1.5 m naught. तो अब देखिए सिचुएशन ऐसा होगा कि यहाँ पे ये मास अब हो गया इसका 1.5 m, सॉरी स्टार का मास जैसे m था, तो अब ये बन गया 1.5 m, एंड एस्ट्रॉइड अभी यहीं पे, यहाँ पे है, इसी लोकेशन पे है. अब आगे ये बढ़ेगा, ठीक है. तो देखिए जब भी कोई क्वांटिटी सडनली चेंज होता है ना, जैसे मास सडनली चेंज हो गया, तो स्पीड कैन नॉट चेंज सडनली, क्योंकि देखिए एक्चुअली ऐसा होता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt. तो हम लोग अगर dv लिखते हैं, dv इज इक्वल टू adt, और अगर सडन चेंज हो रहा है ना, तो इसमें टाइम डिफरेंस जीरो होता है, तो ये जीरो कर दोगे आप, तो dv इक्वल टू जीरो आ जाएगा. दैट मीन्स स्पीड में चेंज जीरो आ रहा है, तो चेंज इन स्पीड जीरो है, तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड अभी भी v नॉट रह जाएगा. सो स्पीड विल रिमेन v नॉट. ओके, सो देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे इसका ये डिस्टेंस r नॉट है, स्पीड विल रिमेन v नॉट. ओके, नाउ इट विल, ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है कि इट विल मूव आइदर इन सर्कल और एलिप्स, ठीक है, सर्कल या एलिप्स में मूव करेगा, ठीक है. तो देखिए अगर यहाँ से सर्कल में ये मूव करता है, ठीक है, सर्कल में मूव करने के लिए, तो सर्कल में मूव करने के लिए देखिए हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होगा ना, वो ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल होता है. वो हम लोग ऐसे लगाते हैं, मतलब यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, मतलब रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखते हो, और रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन से स्पीड का फॉर्मूला आता है, ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए स्पीड अभी चेंज नहीं हुआ है, स्पीड जो है ना सडनली मास को चेंज किया गया है, तो स्पीड विल नॉट चेंज, स्पीड विल रिमेन द सेम, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि dv इक्वल टू जीरो है. तो इसमें स्पीड अभी भी इतना ही होगा 2gm/r नॉट. तो एक्चुअली देखिए क्या है कि अगर ये सर्कल में मूव करने की स्थिति होती है ना, यहाँ पे इफ इट वुड हैव मूव्ड इन सर्कल, तो इसकी स्पीड ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल होता है, और ऑर्बिटल स्पीड जो होता है ना, वो g मल्टीप्लाइड बाय मास होता है और डिवाइड बाय रेडियस. ओके, तो यहाँ पे g मल्टीप्लाइड बाय मास, यहाँ पे जैसे 1.5 है ना, तो 1.5 मास नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1.5 का फैक्टर नहीं आ रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट क्लियर दैट इट विल नॉट मूव इन अ सर्कल.
तो ये सर्कल में मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1.5 GM होता है ना और डिवाइड बाय आर नॉट, देन इट वुड हैव मूव्ड इन सर्कुलर पाथ, but that is not the case, so it will not move in circle, so definitely it will move in elliptical path. Okay, तो ऑर्बिटल स्पीड जो सर्कल के लिए होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं ऑर्बिटल स्पीड और सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कल के लिए जो मतलब अंडर ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम जो होता है, ठीक है ना, v इज इक्वल टू दैट इज रूट अंडर g, और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो सेंटर पे है और डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पे मास जैसे 1.5 है ना, तो यहाँ पे 1.5 m होना चाहिए, यहाँ पे उतना नहीं आ रहा है, सो इट कैन नॉट मूव इन ए सर्कल, ठीक है। सो इट विल डेफिनेटली मूव इन एलिप्टिकल पाथ। ओके, तो फिर ये एलिप्टिकल पाथ में मूव कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एनर्जी एक बार फिर से निकालते हैं, तो अब फिर से एनर्जी ई डैश निकाल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज मास है सडनली चेंज, तो एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं होगा, एनर्जी अब चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो अब न्यू एनर्जी वी आर कैलकुलेटिंग, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट हियर न्यू एनर्जी। ओके, ये न्यू एनर्जी होगा, न्यू एनर्जी। तो अगेन विल राइट काइनेटिक एनर्जी, तो इट्स मास इज स्मॉल m हाफ m और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर में यही आ जाएगा 2g कैपिटल M और बाई आर नॉट, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है g, और अब इसका मास है कैपिटल M 1.5 कैपिटल M एंड स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर नॉट। तो ये इसका रिजल्ट है यहाँ से। तो देखिए हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करते हैं ना, सो वील गेट हियर, ये 3/2 है, तो ये माइनस करोगे ना, तो ये माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r0 आ जाएगा, दैट्स व्हाट वी गेट। तो दैट्स द एनर्जी। ओके, तो ये इसका न्यू एनर्जी है, ठीक है। तो पहले देखिए एनर्जी जीरो था, अब एनर्जी जीरो नहीं है, अब एनर्जी नेगेटिव है। तो नेगेटिव एनर्जी जब होता है ना अंडर ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम, देन पार्टिकल आइदर मूव्स इन सर्कल और एलिप्स, बट यहाँ पे हमने ऑर्बिटल स्पीड के लॉजिक से बता दिया कि सर्कल में तो मूव नहीं कर सकता है, बिकॉज ये स्पीड का जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मास को अगर 1.5 m हम लिखेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड होना चाहिए 1.5 GM/r, बल्कि लेकिन यहाँ पे स्पीड है 2 GM/r, सो इट कैन नॉट मूव इन सर्कल। ओके, सो नाउ यू सी हमें एनर्जी ये पता चल गया है। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर कोई इलिप्टिकल पाथ है ना, और इलिप्टिकल पाथ में सेमी मेजर एक्सिस जैसे ए है, तो उसमें टोटल एनर्जी जो सिस्टम का होता है ना, वो GMM/2a होता है, दिस इज 2a। तो यहाँ से आप सब कुछ कैंसिल कर दोगे ना, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू r0। ओके, सो देयरफॉर वी विल से दैट इट विल मूव इन इलिप्टिकल पाथ, और जिसका सेमी मेजर एक्सिस जो होगा ना वो r0 होगा, दैट इज r0। ओके, सो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस r0, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन से पता चलता है हमें कि एलिप्टिकल ऑर्बिट अगर है जिसका सेमी मेजर एक्सिस ए है, उसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या कोई भी प्लैनेट वगैरह मूव कर रहा है अराउंड द सन, and sun is situated at the focus. Okay, so in that case total energy comes out to be minus gm/2a। तो ये जो यहाँ पे एनर्जी निकला है ना, उसको हम इस फॉर्मूले से इक्वेट कर दिए, एंड फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग a इक्वल टू r0। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका यही होगा कि इट विल मूव इन एलिप्टिकल पाथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस r0। ओके, ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is Hamiltonian of a system is given to be p square by 2m plus kx to the power 4. Now question says the particle released at x equal to minus x naught। अच्छा, इसमें सेंटेंस में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रीचेस लिख दो यहाँ पे, इसको रीचेस लिख देते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल को अगर हम यहाँ से रिलीज करते हैं, द पार्टिकल रिलीज एट x equal to x naught रीचेज x equal to plus x naught in time t1। When particle is replaced by another particle of mass 4m and potential remains same, then corresponding time becomes t2। तो वैल्यू ऑफ t2 by t1, मतलब क्वेश्चन देखिए हम समझा देते हैं। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि सपोज वी हैव ए सिचुएशन समथिंग लाइक दिस, कि ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है माइनस एक्स नॉट और दिस पॉइंट इज प्लस एक्स नॉट, ठीक है, प्लस एक्स नॉट है। यहाँ से हम किसी पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं, इसका मास है m, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा इधर, ठीक है ना, इट विल मूव हियर। तो इफ यू रिलीज हियर एट टाइम t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये पहुंचता है t इक्वल टू t1 पे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम लग रहा है t1। ओके, नाउ वी कंसिडर अनदर सिचुएशन वेयर this is origin, this is minus x naught, and this is plus x naught। So now we are releasing a particle, एक पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं जिसका मास यहाँ पे 4m है, ठीक है, मास इज 4m। So if you release it here at t equal to 0, this particle reaches here at time t equal to t2। तो हमें ये बताना है t2 by 4m को यहाँ तक पहुंचने में t2 टाइम लग रहा है, तो t2 by t1
कितना होगा, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड। एंड हियर इट इज गिवन दैट Hamiltonian which is describing the dynamics of the system is h equal to p square by 2m plus kx to the power 4. That's the Hamiltonian. Okay, so let's solve it. Okay, आप लोग इसका सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट खुद से कर सकते हो बिफोर लुकिंग एट सॉल्यूशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग, तो इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स सॉल्व इट ऑन अनदर स्लाइड। हैमिल्टोनियन जो इसका दिया हुआ था ना, ये इतना लिखा हुआ है पी स्क्वायर बाय 2m और प्लस के एक्स टू द पावर 4, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका अगर हम लोग लैग्रैन्जियन लिखते हैं, ठीक है ना, इफ वी राइट लैग्रैन्जियन, या इसका देखिए अगर एनर्जी लिखते हैं, सपोज पार्टिकल का एनर्जी अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो स्टार्टिंग में देखिए जैसे x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है यहाँ पे, सॉरी x इक्वल टू x नॉट पे, तो पार्टिकल का मोमेंटम यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो पार्टिकल का मोमेंटम 0 है ना, तो जैसे हैमिल्टोनियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे एनर्जी भी आप लिखेंगे ना तो ऐसा ही आ जाएगा, दिस इज पी स्क्वायर बाय 2m और प्लस के एक्स टू द पावर 4, यही इसमें एनर्जी का भी फॉर्मूला है। तो अगर ये एनर्जी एक्चुअली कांस्टेंट होता है ना, तो अगर हम इसका वैल्यू पता करना चाहते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे, देखिए t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू जो दिया हुआ था ना वो x नॉट था और मोमेंटम जो था वहां पे वो 0 था। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो यहाँ से निकलेगा ना, देखिए यहाँ पे इसको मोमेंटम को आप 0 कर दोगे तो k एक्स टू द पावर यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है ना, x नॉट टू द पावर 4, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट इज द एनर्जी। ओके, और देखिए पार्टिकल का मास यहाँ पे m लिखते हैं या 2m लिखते हैं, दोनों केसेस में एनर्जी इतना ही होगा, ठीक है ना। फॉर एनर्जी यही होगा फॉर बोथ मास m एंड 2m, क्योंकि दोनों के लिए ये कंडीशन है कि t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू x नॉट है और मोमेंटम 0 है, तो मोमेंटम को हम 0 कर रहे हैं और x की x नॉट पुट कर रहे हैं, तो एनर्जी का ये वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ यूजिंग दिस फैक्ट, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर हम चाहते हैं तो इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं ऐसे k, और यहाँ पे लिख सकते हैं x नॉट टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ठीक है, ये मोमेंटम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको अगर काइनेटिक एनर्जी में इस तरह से लिख दे हाफ एम वी स्क्वायर जैसा, ठीक है ना, तो हाफ एम और वी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा ये, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के एक्स टू द पावर 4। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज p बाई 2m आई हैव रिटन इट लाइक दिस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यू ब्रिंग इट टू दिस साइड, ओके, तो इससे dx बाई डी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, dx बाई डी इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर दोगे k, और यहाँ पे बन जाएगा x नॉट टू द पावर 4 और माइनस x टू द पावर 4, एंड यू विल मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई m, सो दिस इज व्हाट वी गेट। तो यहाँ से हम लोग dt कैलकुलेट करेंगे, देखिए dt विल बी इक्वल टू, इसका थोड़ा रीअरेंज कर दोगे तो dt विल बिकम इक्वल टू dx और डिवाइडेड बाय हियर, अच्छा इसमें dx बाई dt का होल स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटाओगे ना तो इस पे रूट भी आ जाएगा, ठीक है, यू विल गेट ए रूट। सो हियर वी गेट 2k डिवाइडेड बाय m एंड हियर x नॉट टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4, दिस वी गेट अंडर रूट। ओके, तो देयरफॉर टोटल टाइम जो निकालना है ना, तो इसमें थोड़ा ये ऐसा हो जाएगा m अपॉन 2k, दिस इज व्हाट वी गेट, एंड dx और डिवाइडेड बाय यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा ये x नॉट टू द पावर 4 और माइनस x टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ना वो माइनस x नॉट से प्लस x नॉट है, तो देखिए ये इंटीग्रेशन तो दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है, टाइम जो आप निकाल रहे हो माइनस एक्स नॉट से प्लस एक्स नॉट जाने के लिए, तो दिस टाइम विल बी प्रेजेंट इन बोथ केसेस। यहाँ पे एक बार मास m लिखना पड़ेगा और एक बार मास आपको 4m लिखना होगा, तो मतलब T1 जो निकलेगा ना, T1 जो बोला गया था क्वेश्चन में, उसमें ऐसा होगा m डिवाइडेड बाई 2k, और यहाँ पे रूट अंडर माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस एक्स नॉट टू प्लस एक्स नॉट एंड dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर हियर x नॉट टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4, दिस वी गेट। एंड T2 जब आप निकालेंगे तो दैट इज फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास 4m, तो यहाँ पे 4m लिखना होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आ गया 2k एंड इंटीग्रेशन माइनस एक्स नॉट टू प्लस एक्स नॉट एंड dx एंड डिवाइडेड बाय हियर यू गेट x नॉट टू द पावर 4 और माइनस x टू द पावर 4, दिस वी गेट। सो नाउ इफ यू डिवाइड दिस टू, इफ यू डू T2 डिवाइड बाय T1, तो अगर हम यहाँ पे T2 डिवाइड बाय T1 कर देंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सभी फैक्टर्स कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रूट 4 से बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। ओके,
Correct answer is 2. So here T2 डिवाइड बाय T1 जो बोला गया था इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ अगर 4m का मास अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो टाइम इसको T2 लग रहा है, मास m अगर यहाँ से यहाँ मूव कर कर जा रहा है तो इसको टाइम T1 लग रहा है, T2 बाई T1 हमें निकालने के लिए बोला गया था, तो आंसर इस क्वेश्चन का 4 आ रहा है, ठीक है ना, आंसर इज 4. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड 6 क्वेश्चंस, नाउ मूविंग टू 7th क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये EMT से कुछ रिलेटेड है. Question says a particle of rest mass m naught and charge q enters into a uniform magnetic field region of width L. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्टेड है, ठीक है. ये पार्टिकल है, देखिए ये पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, इसका रेस्ट मास m नॉट है और ये ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है. इसकी कुछ स्पीड है यहाँ पे, ठीक है, इट हैज सम स्पीड भी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज such that the particle moves in circular path of radius 2L, ठीक है. इसमें पार्टिकल ऑफ, हाँ, इसमें रेस्ट मास m नॉट एंड चार्ज के एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, region of width L as shown in the figure. The value of magnetic field is such that the particle moves in circular arc of radius 2L. That is given. Time is spent by the particle inside the magnetic field region is. अच्छा, actually जानते हो, when I was framing this question, so I had in mind that kinetic energy of the particle is actually equal to rest mass energy. तो ये हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन में ये था कि kinetic energy of the particle, kinetic energy of particle is equal to its rest mass energy. तो ये एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है. देन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिस हो गया था, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, ये इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है. अदरवाइज भी, क्योंकि स्पीड अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो आप टाइम बता नहीं सकते हो कितना टाइम इसमें स्पेंड कर रहा है, ठीक है. सो काइनेटिक, ये इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है ना, उसके बेसिस पे हम ये स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. तो चलो स्पीड कैलकुलेट कर ही लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, लेट्स डू द सॉल्यूशन. सबसे पहले स्पीड निकालते हैं. तो देखो काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविटी में हम लोग जानते हैं एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर लिखा जाता है. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ पे एम नॉट, काइनेटिक एनर्जी को एम नॉट सी स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ से भी हो जाएगा एम सी स्क्वायर और माइनस एम नॉट सी स्क्वायर हो गया. तो सी स्क्वायर सभी से कैंसिल हो जाएगा, ये एम नॉट इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए कि इससे आ जाएगा 2m नॉट इज इक्वल टू एम. ओके, नाउ एम का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ से 2m नॉट है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एम का वैल्यू होता है एम नॉट डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो एम नॉट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसको स्क्वायर करके इन्वर्ट कर दोगे तो 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है. रीअरेंज कर दोगे इसे, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4. सो वी विल बी इक्वल टू हियर सी रूट 3/2. सो दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ओके, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इतना है. सो विद दिस स्पीड पार्टिकल एंटर्स इन दिस रीजन and then it comes out. So question is how much time it spends inside this magnetic field region. Okay, और इसमें ये बोला गया है कि value of magnetic field is such that this particle is moving in an arc of radius 2L. यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, moves in an arc, circular arc of radius 2L. यहाँ पे जैसे ये L दिया हुआ है ना, तो it is moving in a circular arc of radius 2L actually, ठीक है. So let's see what we get here. ठीक है, so on next slide we are solving this question. See here situation is something like this. There is a magnetic field region here and a particle is entering into this region, ठीक है. तो यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, तो here it will go like this. ये इस तरह से सर्कुलर आर्क बन गया ये, ठीक है. So when it is here, its velocity will be in this direction. Here velocity is in this direction. In magnetic field speed doesn't change. Okay, so here speed will remain the same. Okay, because magnetic field doesn't do any work. Okay, so speed will remain same actually, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग रेडिएशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली. व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट रेडिएट्स सम एनर्जी, तो यहाँ पे रेडिएशन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, रेडिएशन नेग्लेक्टेड. Okay, so when charge particle is moving in circular arc, it is actually accelerated, so it will radiate some energy, so that radiation we are neglecting here. Okay,
तो नाउ यू सी, यहाँ पे जैसे ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज एक्चुअली टेंजेंशियल टू द पाथ होता है ये, सो टेंजेंट के डायरेक्शन होगा, और इसका रेडियस जो है ना इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, ऐसा होगा। ठीक है, ये रेडियस का डायरेक्शन है। हियर वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस साइड देखिए, ये भी रेडियस होगा ऐसे, ठीक है ना, दिस, so दिस इज द रेडियस एंड दिस विल आल्सो बी रेडियस। तो ये दोनों रेडियस होंगे, ठीक है ना, दिस इज रेडियस एंड दिस इज आल्सो रेडियस। ओके, नाउ यू सी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मतलब ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस लेंथ इज एल, और ये अगर क्योंकि ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ में रेडियस ही होता है, तो ये रेडियस हो जाएगा, तो दिस विल बी 2l एक्चुअली, और यहाँ से यहाँ तक भी ये 2l होगा। ओके, now this width is given to be L, so therefore this will also be L. Okay, this angle is, let's say, theta. तो हम ये कह सकते हैं कि particle moves along this arc and that arc is subtending theta angle at the center. ठीक है, so therefore time spent in magnetic field will be equal to time spent in magnetic field. Magnetic field, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू टी इज इक्वल टू थीटा एम अपॉन क्यू बी होता है। ठीक है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर पाथ एट द सेंटर, सर्कुलर पाथ या सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट एंगल इंटू एम मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन क्यू बी। एम इज द डायनामिक मास हियर, रिमेंबर, अगर आप रिलेटिविस्टिक केस डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे एम जो होगा वो डायनामिक मास होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन सेज कि रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू होता है इस तरह से एम वी अपॉन क्यू बी। तो अब देखिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 2l, तो एंड दिस m अपॉन क्यू बी हो गया, एंड वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड, तो स्पीड हमने निकाला है √3/2c। तो देयरफॉर m अपॉन क्यू बी जो आएगा यहाँ से, आप देखिए m अपॉन क्यू बी दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 4l अपॉन √3c। That's what we have now. Okay, 4l upon √3c. So this one we will put here. तो t is equal to, अच्छा यहाँ से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप साइन थीटा इसमें अप्लाई करोगे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो l अपॉन 2l होगा, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इज 30 डिग्री, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट थीटा जो होगा ना, साइन 30 तो 1/2 होता है ना, तो दिस इज साइन 30 लिख सकते हैं हम लोग इसे 30, या फिर इसे π/6 लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। ओके, सो थीटा इज π/6 हियर। सो लेट्स पुट एवरीथिंग हियर। देखिए m अपॉन क्यू बी का वैल्यू हमारा ये निकल चुका है 4l अपॉन √3c, this, and theta we have calculated π/6, so we have put the value of theta also here. तो अब आप देखिए यहाँ से कैंसिलेशन करोगे ना, 4 से ये कैंसिल होगा, 6 तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो वी विल गेट हियर 2πl अपॉन 3√3 and c, that's the answer. So charge particle will spend this much time inside this magnetic field region. Okay, so time taken, आप ऐसे भी कह सकते हैं, time taken by this charge particle to cross this magnetic field region will be equal to this much. Okay, so that was given in one option here, you see 2πl upon 3√3c. So इसका correct option जो होगा that is this D option. Okay, definitely I had missed this kinetic energy part. Okay, तो अगर जो लोग पहले स्क्रीनशॉट लिए होंगे और अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो हो सकता है उन्हें इनसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, सो दे शुड एक्चुअली include this kinetic energy part. Okay, so let's do next question. See, this is a basic question from electromagnetic theory. It says electromagnetic wave propagating in vacuum has electric field, ये दिया हुआ है E naught cos omega t minus alpha x minus √3 alpha y, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, दिस इज द electric field associated, okay, with it. So power crossing through unit area of plane, एक plane दिया हुआ है, इसके unit area से कितना power cross कर रहा है, is written like this in terms of epsilon naught E naught square and c. Here we have to tell what numerical factor will come. Okay, so let's see. तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दिस इज अ प्लेन वेव, इसकी इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं कि इतना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड E naught स्क्वायर एंड c, ये होता है। ओके, नाउ लेट अस सी इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालते हैं इसका,
तो दैट इज बेसिकली गिवन बाय के वेक्टर एक्चुअली। तो के वेक्टर अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे अल्फा अल्फा है, माइनस अल्फा है, तो अल्फा लिखेंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो इसको प्लस लिखा जाता है, तो अल्फा आई कैप हो जाएगा और प्लस यहाँ पे √3 अल्फा और जे कैप हो गया। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हियर। ओके, तो अगर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालते हैं, जैसे अगर के कैप, ठीक है ना, या इसी को हम लोग डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर भी लिखते हैं, एस कैप। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, तो दैट विल बी इक्वल टू, आप कॉमन फैक्टर से पहले डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस √3 जे कैप। अब इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो इसका मॉडुलस 2 आएगा, ठीक है, सो विल डिवाइड बाय 2, तो आई कैप प्लस √3 जे कैप एंड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ओके, so that's the डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हियर। ओके, नाउ इंटेंसिटी है, तो इसमें पावर निकालने के लिए बोला गया है, तो पावर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, क्रॉसिंग, पावर क्रॉसिंग, ठीक है, ये अगर आप निकालना चाहते हैं तो दैट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। पावर क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो पावर क्रॉसिंग अगर मेनली फॉर्मूला पावर क्रॉसिंग का इतना होता है, सॉरी, यहाँ पे एस हम लोग ऐसे लिखते हैं, एस डॉट, और ये एरिया होता है यहाँ पे डी ए, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर इसका मॉडुलस स्क्वायर और फिर एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। सो इट्स मॉडुलस वी टेक एंड देन वी टेक एवरेज वैल्यू। ओके, सो इफ यहाँ पे आप देखिए इंटेंसिटी तो यूनिफॉर्म है ना, तो इसलिए एस वेक्टर बाहर आ जाता है यहाँ पे, तो इट बिकम्स एक्चुअली एस मॉडुलस, एस वेक्टर का मॉडुलस और फिर इसका एवरेज आ जाता है, ठीक है ना। और डॉट यहाँ पे होगा, बेसिकली डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया बन जाता है, दिस बिकम्स एरिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली गेट। ओके, तो ये इंटेंसिटी का मॉडुलस फिर एवरेज ले रहे हो ना, तो सॉरी, ये पॉइंटिंग वेक्टर का मॉडुलस ले रहे हो एंड देन एवरेज, सो दैट एक्चुअली बिकम्स इंटेंसिटी, और ये यहाँ पे बस डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर बच जाएगा, और यहाँ पे आप ऐसे ये इसका नॉर्मल लिख सकते हो, ठीक है ना, दिस इज एन कैप, और यहाँ पे एरिया बच जाएगा, ठीक है ना। सो दिस ए वी आर राइटिंग एज एरिया। ओके, सो इट इज गिवन टू बी यूनिट एरिया, तो इसीलिए पावर थ्रू यूनिट एरिया अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, पावर थ्रू यूनिट एरिया, पावर थ्रू यूनिट एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसा होगा, पावर इज इक्वल टू ये इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, तो डायरेक्शन इंटेंसिटी तो यहाँ पे देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया है, और ई नॉट स्क्वायर एंड सी, एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज दिस वन, हियर विल राइट आई कैप और प्लस √3 एंड जे कैप एंड डिवाइड बाय 2 हो गया, एंड डॉट एन कैप अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, लेट अस राइट डाउन एन कैप हियर। ओके, तो दिस इज द plane, so we are calculating normal to this plane, so we can just take gradient of this function, ठीक है। अच्छा, थ्रू प्लेन लिखा हुआ है, प्लेन में यहाँ पे समथिंग इक्वल टू लिखना पड़ेगा, मान लो इक्वल टू हमने 12 लिख दिया है, ठीक है, सो देयर वाज सम इंफॉर्मेशन मिसिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो हियर सपोज वी हैव रिटन प्लेन टू बी इक्वल टू 2x प्लस √3y प्लस √2z इक्वल टू 12, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको, सॉरी ये क्या हुआ, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि दिस हियर वी हैव रिटन 12 इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल जो निकलेगा, नॉर्मल विल बिकम इक्वल टू, हियर इट इज समथिंग लाइक दिस, 2 आई कैप और प्लस √3 जे कैप एंड प्लस दिस विल बिकम √2 के कैप, सो इट इज गोइंग टू बी √2 के कैप। नाउ इसका मॉडुलस से डिवाइड करना होगा, तो इसका इस मॉडुलस निकालोगे तो 4 + 3 7 और +2 9, तो मॉडुलस इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द पावर क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया, वी हैव पुट हियर a इक्वल टू 1, ओके, टू मेक इट यूनिट एरिया, ऑलराइट। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग हियर डॉट प्रोडक्ट करना होगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड ई नॉट स्क्वायर and multiplied by c, and here you do dot product, so you get 2 and √3 multiply, so that gives us 3, and divided by, here we get these two multiply, so this gives us 4 and here 3. Okay, so that's what we get actually. तो दैट्स द आंसर। डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो यहाँ से आई डॉट आई से 2 आ गया और ये 3 आ जाएगा, ठीक है, एंड हियर यू मल्टीप्लाई, सो दिस इज 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, सो दिस इज 5 बाय डिवाइड बाय, oh sorry, here this one I have written actually here, just a minute. So here I had written 2, so here we can just multiply these two and write 6 here. Okay, so therefore in terms of epsilon naught and e naught square and c, in terms of these factors,
we write, then we get here 5 divided by 12 here. Okay, 5 divided by 12. So that is the answer. So here numerical factor जो क्वेश्चन में पूछा गया था, so that numerical factor will be 5 divided by 12. Okay, here answer जो इस क्वेश्चन का लिखना होगा, answer that is 5 divided by 12. All right. So let's move to next question. So if you do not understand anything, then you can just mention that in comment. I will try to reply. Okay. So next question, it says consider two systems with Hamiltonian. So this is a question from quantum mechanics. It says consider two systems with Hamiltonian h1 equal to p square by 2m half m omega square x square, and here lambda 1x and h2 equal to p square by 2m or हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड लेमडा 2 एक्स स्क्वायर इसमें लिखा, इसमें x लिखा हुआ है और इसमें x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है. एंड नाउ क्वेश्चन सेज रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी for the two cases are R1 and R2. So R1 is the ratio of first excited state energy and ground state energy for this system, and R2 is for this system. And question says with R1 is equal to 2R2 दिया हुआ है, ठीक है. So question is value of lambda 1 square. यहाँ पे जो lambda 1 है ना उसका value बताना है. We have to tell the value of lambda 1 square, and that answer has to be expressed in terms of m omega cube and h bar. So basically we have to tell here numerical factor, that what numerical factor we are going to get here. Okay. तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं. सी हियर लेट्स सी सॉल्यूशन. The first Hamiltonian h1 can be written like this, p square upon 2m, and plus we will write here half m and omega square, and let us take this factor common in these two. Okay, so half m omega square, we will get here x square, and plus here you will get 2x and multiplied by lambda 1 and divided by here you will get m omega square. See, I have taken 2 common, so here 2 gets multiplied, and since we have taken m omega square common, so this term will be divided by m omega square. So now I want to convert this or express this in terms of whole square of x term. Okay, so this is like a square, this is 2a, and this is like b square. So I'll add a term lambda 1 and divide by m omega square whole square. Okay, and I'll also subtract this lambda 1 square and divided by m omega square whole square. So that's what we have now. So this Hamiltonian h1 becomes actually equal to p square divided by 2m and plus half m and omega square, and these three terms combine to give x plus lambda 1 divided by m omega square. Okay, so whole square, that's what we get, and last term we will write separately because ये तीन term मिलकर के तो whole square में convert हो गए, ठीक है. Now last term we will write separately, so this becomes lambda 1 square or divided by 2 m omega square, because there is m omega square here and this is m omega square whole square, so you'll get 2 m omega square. Now you see this term is just a constant addition. Okay, and this is like a whole square term. Okay, यहाँ पे इसमें आप ये कह सकते हो this is just a simple harmonic oscillator. Okay, for which equilibrium position is shifted. Actually equilibrium position is not at origin. Equilibrium position जो आएगा ना वो x is equal to minus lambda 1 divided by m omega square पे आएगा. आप पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव जीरो करोगे ना, फोर्स को जीरो करोगे, जहाँ पे द पोजीशन वे फोर्स इज जीरो, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव को जीरो करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा है. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा बेसिकली माइनस लैम्डा 1 डिवाइड बाय एम ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज जस्ट ए हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर विच इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नॉट एट ऑरिजिन. ओके, तो इसका जो एनर्जी होता है ना, देखिए इसके लिए हम लोग एनर्जी अगर लिखते हैं, ठीक है ना, सो दिस इज जस्ट लाइक ए हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो इट्स एनर्जी इज जैसे आप ई एन लिखोगे इसमें तो ये ऐसा होगा एच क्रॉस ओमेगा एंड हियर एन प्लस हाफ and minus lambda 1 square or divide by 2m omega square. Okay, that's what we get. So therefore if we write r1 here, देखो यहाँ पे r1 बोला गया इसमें रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे. सो यू विल गेट हियर 3/2 h क्रॉस ओमेगा एंड माइनस lambda 1 square or divided by 2m omega square. That's what we get. And here ground state energy n equal to हम लोग 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो this will become 1/2 h cross omega and minus lambda 1 square upon 2m omega square. So that's the r1. Okay, now let us modify this one. ये जो हैमिल्टोनियन है ना, ये r1 निकला हुआ है, उसको फिर हम इससे ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, then we'll get the value of
lambda 1 square. Now let us write this Hamiltonian, second जो Hamiltonian है, देखिए इसको जो है ना, इसको भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, this we can write like this, p square upon, sorry, let us write it on another slide. तो यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ है h2 is equal to p square upon 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, और प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे lambda 2 और x स्क्वायर. This is what we have, lambda 2 and x square. So therefore, we get here, we will just rewrite this Hamiltonian, half m p square by 2m, and this becomes half m, and here omega square we are taking common. So we'll get here x square will also be common. So we'll get here 1 plus and 2 lambda 2 or divided by, we have taken half m common, so that's why it will look like this, half m and 2 lambda 2 or divided by, here we'll get m omega square. Okay, and here x square. This is what we have. Okay, so this is like Hamiltonian h2 is equal to p square divided by 2m, and it is half m and omega square, and this or we can write it like this, omega, and this we can write like this, 1 plus 2 lambda 2 और divided by m omega square, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, so this is x square. Okay, so this now behaves like a simple harmonic oscillator which has frequency equal to this much, not just omega. This behaves now like frequency. Okay, so h2 is equal to p square by 2m or plus this is half m, and we can write this as omega dash square and x square. So this is a harmonic oscillator which has a different frequency now. Okay, तो इसकी जो एनर्जी होगी, देखिए En जब आप निकालेंगे इसमें, तो h क्रॉस यहाँ पे ओमेगा डैश लिखना होगा. ओमेगा डैश विल बी एक्चुअली इक्वल टू हियर, ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर 1 प्लस 2 lambda 2 और डिवाइड बाय m ओमेगा स्क्वायर होगा. दिस इज व्हाट वी गेट. So omega dash equal to omega multiplied by this factor, 2 lambda 2 divided by m omega square. So here we have En is equal to h cross omega, and here n plus half ऐसे लिखना होगा. So now if you calculate energy of first excited state, मतलब R2 जो बोला गया है, ठीक है ना, R2 we are calculating here. R2 will be equal to energy of first excited state, so that will be 3 by 2 h cross omega dash, and here for ground state we'll write 0 here, so you will get 1 by 2 h cross omega dash. So that is actually coming out to be 3. So R2 is coming out to be 3. Now question says R1 is equal to 2R2, ऐसा लिखा हुआ है. तो R1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है. See, we have calculated R1 this much. ठीक है, so this is 3 by 2 h cross omega and minus lambda 1 square upon 2m omega square, and divided by this is 1 by 2 h cross omega and minus lambda 1 square and divided by 2m and omega square, and that is equal to 2R2. So 2 and R2 is 3, so this becomes equal to 6. So let us do cross multiplication. Okay, so we are going to get here basically this is what we have. So let's do cross multiplication. So this side we'll get 6 by 2 h cross omega and minus here we'll get 6 lambda 1 square by 2m omega square is equal to 3 by 2, and here h cross omega and minus this term gives you lambda 1 square and divided by 2m and omega square. That's what we get. So bring it this sum to this side. So this becomes 6 minus 3. So this becomes 3 by 2 h cross omega, and this factor goes to that side. Okay, so that will become 6 plus हो जाएगा minus 1, तो ये हो जाएगा 5 lambda 1 square or divided by 2m and omega square. Okay, so now we are getting here, you see factor of 2 will cancel out. Okay, so lambda 1 square निकालने के लिए बोला गया था, तो that will be equal to 2 cancel out हो गया है यहाँ पे, so that will be 3 by 5. ठीक है, 3 by 5, 3 and 5 will come in the denominator, and here we'll get h cross m and omega cube. So that's the answer here. Lambda 1 square is coming out to be 3 by 5 h cross m omega cube. Okay, so we can say that here question was what is the value of lambda 1 square in terms of h cross m omega cube. देखिए h cross m omega cube के टर्म में ही आया है, h cross m omega cube है ना. ठीक है, so आंसर इज 3 by 5. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज 3 by 5. दैट मीन्स 0.6. So that's the answer.
All right, so we have covered how many questions? We have covered 9 questions. So, okay, so now let's discuss question number 10. See, it says two non-interacting identical spin half particles are placed in potential. This is 2D harmonic oscillator potential. If spin state of the system is is given to be S equal to 1 and ms equal to 0, then energy of second excited state for given spin configuration is, ओके तो हमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकालना है। तो एच क्रॉस ओमेगा की यूनिट में निकालना है, हमें बताना है यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा वो। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कि हमें एब्सोल्यूट सेकंड एक्साइटेड स्टेट नहीं निकालना है। एक होता है ना एब्सोल्यूट ग्राउंड स्टेट, एब्सोल्यूट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एब्सोल्यूट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दैट वी डोंट हैव टू फाइंड। ओके, जैसे ग्राउंड स्टेट जो होता है वो मतलब सबसे कम जो एनर्जी होता है, ठीक है, उसे हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस पोटेंशियल में ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऐसा नहीं बोला गया है, इसमें बोला गया है इस पोटेंशियल में इस स्पिन के लिए अगर स्पिन का रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे, अब बोलेंगे कि फिर बताइए कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्पिन, तो दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे s का वैल्यू 1 है, ठीक है, s इज इक्वल टू 1, तो हमें बताना है कि इस केस में एब्सोल्यूट ग्राउंड स्टेट कितना एनर्जी कितना होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, वी हैव टू फाइंड द सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर गिवन स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो स्पिन का वैल्यू 1 है, एमएस का वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस स्टेट के लिए बताना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी बताना है, मतलब एब्सोल्यूट सेकंड एक्साइटेड स्टेट नहीं बताना है। ठीक है, एब्सोल्यूट सेकंड एक्साइटेड स्टेट वो होगा जिसमें स्पिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें एक्चुअली देखो ये s इक्वल टू 1 जैसे लिखा हुआ है ना, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं देर आर टू पार्टिकल्स हियर। ठीक है, तो दोनों पार्टिकल में स्पिन s1 इक्वल टू हाफ है और फिर s2 भी हाफ है। ठीक है, तो इससे अगर आप s कैलकुलेट करते हैं ना तो s1 और 0 आएगा। तो s इक्वल टू 1 वाला केस जो होता है ना, इसमें s इक्वल टू 1 जो है इसमें स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। ठीक है ना, सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसलिए स्पेस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होगा, स्पेस पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होगा, एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, स्पेस स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन सिमेट्रिक है s इक्वल टू 1 के लिए, तो स्पेस पार्ट एंटीसिमेट्रिक होगा, सो दैट टोटल वेव फंक्शन जो होगा इस सिस्टम का वो एंटीसिमेट्रिक होगा। ओके, क्योंकि ये स्पिन हाफ पार्टिकल है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल वेव फंक्शन यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, so that will be possible only when we take spin part symmetric and space part antisymmetric। तो इसमें ये एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा से पता चलता है कि s इक्वल टू 1 के लिए स्पिन पार्ट जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो स्पेस पार्ट को तो एंटी सिमेट्रिक लेना होगा। तो अब स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक है ना, तो देखिए क्या होगा कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है ना वो इक्वल नहीं हो सकता है अगर स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक लेते हैं तो। ठीक है, देखिए इसका मतलब इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए माइनस बी आप लिखते हो तो ये एक एंटीसिमेट्रिक टर्म है, क्योंकि ए और बी को इंटरचेंज करोगे ना तो ये इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए ए और बी अगर इक्वल हो जाएंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कोई भी एंटीसिमेट्रिक टर्म है ना, उसमें अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाते हैं या दोनों मैथमेटिकल टर्म इक्वल हो जाते हैं तो एंटीसिमेट्रिक क्वांटिटी 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये तो पता है कि स्पेस पार्ट एंटीसिमेट्रिक है वेव फंक्शन का, तो इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है ना वो इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब सभी क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर सभी क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएंगे तो वेव फंक्शन जो स्पेस पार्ट का है वो 0 हो जाएगा। सो टोटल वेव फंक्शन विल आल्सो बिकम 0, विच इज नॉट अलाउड एक्चुअली। ठीक है, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि टोटल वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वेव फंक्शन लिखते हैं ना, वेव फंक्शन फॉर टू पार्टिकल्स, तो वेव फंक्शन फॉर टू पार्टिकल्स अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखना होगा। देखिए साई और टोटल वेव फंक्शन है ये मान लीजिए, तो साई हम मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे R1 और R2 ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू ऐसे लिखना होगा साई 1 और R1 और फिर साई 2 R2 माइनस साई 2, या ऐसे लिख दो यहाँ पे साई 1 R2 और साई 2 R1 इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल राइट ओके एज वेव फंक्शन।
तो इस तरह से वेव फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। और इसको अगर नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 का फैक्टर, 1/√2। दिस इज व्हाट यू गेट। ओके। तो इसमें जो साई 1 जैसे हमने लिखा है साई 1, तो साई 1 एक्चुअली क्या है कि ये आर लिखा हुआ है ना, आर इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक्स और वाई दोनों यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली ऐसे लिखना पड़ेगा, ये साई जैसे एन एक्स और ये एक्स होगा यहाँ पे, फिर साई एन वाई और वाई होगा, ये इस तरह से लिखना होगा। फिर उसी तरह से जैसे आप मान लीजिए साई 2 लिखते हैं, तो साई 2 में होगा ऐसे साई, यहाँ पे सम एन प्राइम्ड एक्स, ये अलग क्वांटम नंबर होगा एक्स, और फिर साई एन प्राइम्ड वाई, और ठीक है, और यहाँ पे वाई। तो इस तरह से लिखना होगा, साई 2 जो है ना ये इस तरह से होगा, ठीक है। सो दिस आर दी, मतलब हम कह सकते हैं ये मान लो फर्स्ट पार्टिकल का वेव फंक्शन है, तो ये सेकंड का हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सो दिस इज दी, दिस इज हाउ वी कैन राइट। तो अभी देखिए ये इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे R1 जो है ना, तो अभी हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्टिकल यहाँ से देखने पे लग रहा है कि स्टेट साई 1 में है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखने पे फर्स्ट पार्टिकल स्टेट साई 2 में भी लग रहा है, ठीक है। तो ये इससे ये पता चल पा रहा है। फिर उसी तरह से सेकंड पार्टिकल जैसे स्टेट साई 2 में भी दिख रहा है, यहाँ से स्टेट साई 1 में भी दिख रहा है, तो हम एग्जैक्टली हम बता नहीं पाएंगे कि विच पार्टिकल इज इन विच स्टेट, ओके। सो दिस, जब हम इस तरह से वेव फंक्शन को लिखते हैं तो इट इंश्योर्स दैट पार्टिकल्स रिमेन इनडिस्टिंग्विशेबल, ओके। तो आप ये एग्जैक्टली इसको देख करके बता नहीं सकते हैं कि विच पार्टिकल इज इन विच स्टेट, ओके। तो इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरह से वेव फंक्शन को हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम जैसे एनर्जी लिखते हैं, तो एनर्जी तो आप यहाँ पे लिखोगे ना, तो एनर्जी एक्चुअली ऐसा होगा कि जैसे एन एक्स एन वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी अगर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल का क्वांटम स्टेट एन एक्स एन वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकंड का अगर एन एक्स प्राइम्ड एन वाई प्राइम से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका एनर्जी फिर ऐसे लिखा जाएगा, देखो एच क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल से आएगा एन एक्स प्लस एन वाई, ऐसा हो जाएगा। और +1 आएगा तो सेकेंड पार्टिकल से फिर आ जाएगा एन एक्स प्राइम्ड, ठीक है ना, और प्लस एन वाई प्राइम्ड, और +1 उससे भी आएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो एनर्जी अगर यहाँ पे लिखा जाएगा ना, तो इस तरह से लिखना होगा, दिस इज हाउ एनर्जी विल बी रिटर्न, ओके। तो अगर हम देखिए यहाँ पे जैसे कि एन एक्स एन वाई, अगर ये जो 4 क्वांटम नंबर है ना, दीज 4 क्वांटम नंबर्स, अगर इन सभी को हम इक्वल कर देंगे तो साई 1 और साई 2 इक्वल हो जाएगा, और ये साई 1 साई 2 इक्वल हो गया ना, तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 4 क्वांटम नंबर यहाँ पे इक्वल नहीं लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो ग्राउंड स्टेट होगा ना फॉर गिवन स्पिन, देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे फॉर गिवन स्पिन, क्योंकि स्पिन, टोटल स्पिन 1 दे दिया गया ना, तो हमें पता चल गया है कि स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, सो स्पेस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन हैज टू बी एंटी सिमेट्रिक, ओके। तो फॉर गिवन स्पिन हमें ये कहना होगा कि ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगा ना, वो ऐसा, मतलब ऐसे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लो एन एक्स हमने लिख दिया, एन वाई और एन जेड, सॉरी एन एक्स एन वाई और एन एक्स प्राइम्ड और एन वाई प्राइम्ड, हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए हमने लिया 0, इसको भी ले लिया 0, ठीक है ना, इसको भी 0 ले लिया और इसको 1 ले लिया, तो एटलीस्ट देखिए फर्स्ट इससे बनेगा साई 1 और इससे बनेगा साई 2। तो ये साई 1 साई 2 अभी इक्वल नहीं होगा, दिस टू विल नॉट बी इक्वल, तो इसीलिए वेव फंक्शन 0 नहीं होगा। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। फॉर अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट ग्राउंड स्टेट, एब्सोल्यूट ग्राउंड स्टेट तो वो होगा जिसमें ये सभी 0 होंगे, ऑल दिस विल बी 0, ओके। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए इसको 0 लिखा है, इसको 0, तो इसको 1 और 1 कर देंगे, सो दिस विल बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट वो होगा जिसमें ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये नेक्स्ट हायर एनर्जी होगा, ठीक है। तो इन सभी की डिजेनरेसीज भी होगी, ठीक है, देयर विल बी डिजेनरेसी फॉर एवरी स्टेट। तो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये हो जाएगा दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया, ठीक है। सो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। तो मतलब फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखा जा रहा है फॉर गिवन स्पिन, जिसमें स्पिन का वैल्यू 1 लिखा हुआ है, अगर स्पिन इक्वल टू 0 दिया रहेगा तो फिर आंसर उसके लिए, जो स्पिन 0 स्टेट के लिए जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा वो अलग हो जाएगा। और हम ये फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये जो हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं वो मतलब एक टर्मिनोलॉजी है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एब्सोल्यूट मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो एक्चुअल आंसर डिफरेंट हो सकता है, बट दिस इज ट्रू फॉर द केस वेयर टोटल स्पिन इज एक्चुअली इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर गिवन स्पिन जो यहाँ पे दिया हुआ है S = 1, इसके लिए ऐसा ट्रू होगा, ठीक है।
तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि हम लोग इसमें जो एन एक्स एन वाई और ये जो वैल्यू लिखा हुआ है वो हमने 1 1 1 लिया है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 1 1 1 यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा रिजल्ट हमारा। यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, यहाँ भी 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये 3 हो गया और +2 5 हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा ना, एनर्जी, एनर्जी जो यहाँ से कैलकुलेट होगा, एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज 5 h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे बोला गया ना कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर गिवन स्पिन कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी हमें बताना था, तो यहाँ पे 5 पुट करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा, आंसर दैट इज आंसर इज इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 हमें आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स द आंसर। ओके, सो दैट्स all in this video. 10 questions I have covered here. So I'll try to upload 10 more questions tomorrow. And if you have any query, you can ask in comments. I'll try to address your queries. Okay. So that's all in this video. Thank you for watching.